Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class of OC. Today we are going to continue our chapter 5 Forms of Business Organization 1. In my last lecture I explained you about partnership, its characteristics, advantages and disadvantages. Now I am going to explain you about different types of partners. Okay, first is active partner. Active itself, the word you must be knowing what is the meaning of active. Okay, the person, a partner who does all the works of a partnership firm actively, who manages the firm actively, okay, then on the behalf of all other partners, then he is known as an active partner. Second is sleeping or dormant partner. Sleeping is completely opposite of active partner. If a person does not do any of the work, he does not take actively part in management, okay, he does bear the profit and loss, but he is not active in any of the works of the partnership firm, then he is known as a sleeping partner. Next is nominal partner. Nominal partner means any of the person who allows the फर्म वेल नोन पर्सन, कई लोग वेल नोन पर्सन होते हैं, उनकी गुडविल अच्छी होती है मार्केट में, ओके, सो दे बिकम द पार्टनर ऑफ द फर्म, दे अलाउ देयर नेम सो डैट द पार्टनरशिप, जो ये पार्टनरशिप फर्म है उसकी भी गुडविल मार्केट में अच्छी हो जाती है, सो ही अलाउज हिज नेम, ओके, बट इज दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज नोन एज ए नॉमिनल पार्टनर. His liability is unlimited like other partners in profit only. Next is partners in profit only. Many times what happen, a person who has special knowledge, skill or experience in particular field, suppose we want to start a car making company and person who has knowledge about that field, we want to make him his partner. So many times what happens, he may not bring any capital, वो पैसे नहीं ला रहा है, nor does he bear the loss, सिर्फ वो प्रॉफिट में ही हिस्सा ले रहा है, बिकॉज वी वॉन्ट हिम, वी वॉन्ट टू यूज हिज स्किल एंड नॉलेज. Okay, so such type of a partners are known as partner in profit only. Next is no partner by estoppel or holding. A person who has not signed partnership deed, मैंने जैसे बोला कि partnership deed sign होती है, लेकिन वो person ने वो partnership deed नहीं sign किए, he does not share any profit or loss, but in on the basis of his behavior the third party assume he is as a partner in front of a third party, okay, he behaves like the partner of the firm, then such type of a partner is known as partner by estoppel. Next is minor partner. Generally partnership can take place only adult person, a minor cannot become a partner, but if any of the partner dies, okay, किसी की भी partner की death हो जा रही है and if he is a minor child, then that minor child of that partner can become the partner in the firm, okay, he is only liable for the profit and not for the loss, and such type of a person is known as a minor partner of the firm. Okay students, these were the different types of partners. Now we are going to study different types of partnership firm. Okay, first is partnership according to time limit. Okay, टाइम लिमिट के हिसाब से भी पार्टनरशिप होती है, जैसे कि फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल. Okay, in this type of a partnership continues till the will of all the partners, till they have mutual agreement, unity. Okay, if any of the partner disagrees or if you want to dissolve, okay, then by giving the notice he can dissolve the firm. जब तक सबकी इच्छा होती है तब तक वो पार्टनरशिप चलती है, अगर कोई भी मना कर दे तो वो पार्टनरशिप वहीं खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है. नेक्स्ट इज टर्म पार्टनरशिप. टर्म पार्टनरशिप मीन्स when the partnership is for a particular time limit, particularly कोई टाइम लिमिट के लिए पार्टनरशिप हो रही है और जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है देन पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक वर्क. ओके, किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए पार्टनरशिप हुई है, सपोज कोई ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कैनल बनाना है, ओके, कोई पर्टिकुलरली बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें 2-3 पार्टनर्स हैं, जैसे ही वो वर्क कंस्ट्रक्शन का पूरा होता है then the partnership automatically comes to an end. Second we have
पार्टनरशिप फॉर्म अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी. ओके, फर्स्ट उसमें है पार्टनरशिप फॉर्म विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन स्पेशली अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, क्लॉज है कि द पार्टनरशिप फॉर्म इज विद लिमिटेड लाइबिलिटी, तो उसमें क्या होता है, बाकी सब पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, लेकिन सिर्फ जो एक पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फॉर्म विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इसमें सारे पार्टनर्स की पार्टनरशिप में जो भी सारे पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स अगर फर्म के ड्यूज बढ़ जा रहे हैं तो सबको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी वो ड्यूज क्लियर करने हैं. ओके, तो लाइबिलिटी में दो हैं, एक विद लिमिटेड लाइबिलिटी और एक विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी. नाउ अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, उसमें भी दो है, रजिस्टर्ड फर्म एंड अनरजिस्टर्ड. ओके, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फर्म. ओके, अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं. ओके, अगर किसी भी थर्ड पार्टी पे हमें केस करना है या क्या, और अगर हमारा फॉर्म रजिस्टर है तो इजीली हम विद द हेल्प ऑफ अ लॉ वी कैन गो फॉर डेट. नेक्स्ट इज अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म. नेक्स्ट इज अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि रजिस्टर के बाद रजिस्टर नहीं होती है. ओके, so such type of a partnership firm finds difficult to cover its dues as per the law. So this were three types of partnership according to time limit, according to liability and according to registration. Now what if registration of partnership? Now we are going to study about that in detail. Now register of partnership firm. Okay, register of partnership firm can be done according to Partnership Act 1932. It is not compulsory. Okay, compulsory नहीं कि हमें registration करवाना है, but it is advisable to go for the registration. और अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो हमें कुछ फीस भरनी होती है और उसके साथ एक फॉर्म भरना होता है और उसमें हमारी डिटेल्स होती है कि कैसे डिटेल्स होती हैं, लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, हमारे फर्म की कहीं ब्रांचेस होगी, हमारे सारे जो पार्टनर्स हैं उनके नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ईच पार्टनर, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस. उनके रेशियो अलग होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि किसी पार्टनर को ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, तो उनका रेशियो. ओके, डिटेल रिगार्डिंग द कैपिटल, कैपिटल यानी मैन पैसे. ओके, वो पार्टनर्स ने कितना पैसे इन्वेस्ट किया है, दैट डिटेल इज ऑल्सो टू बी गिवन. एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया कि कुछ फर्म्स टाइम लिमिट के हिसाब से होते हैं, स्पेसिफिक वर्क के लिए होते हैं. तो ऑल दिस डिटेल्स आर टू बी फिल्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. Now registration, I told you कि registration is not compulsory but registration is beneficial. So now we are going to study advantages of registration of the firm. Okay, first, if a firm is registered it can easily recover its due. Okay, वो claim कर सकते हैं कोर्ट में अपने ड्यूज के लिए. अगर कोई पार्टनर उसे कोई प्रॉब्लम है तो he can also file a case in the court. A partner can also demand justice from the court of law for his right. अगर उसकी कोई राइट या क्या दूसरे पार्टनर्स उसे कुछ राइट्स नहीं दे रहे हैं, उसका शेयर नहीं दे रहे हैं, तो वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है. अगर कोई भी पार्टनर सपोज रिटायर होना चाहे, ओके, तो वो एक पब्लिक नोटिस दे देगा सबको न्यूज़पेपर में या ऐसे, देन ही कैन बी फ्री फ्रॉम दैट पार्टनरशिप फॉर्म. द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म बिकम्स पब्लिक थ्रू रजिस्ट्रेशन. इसका मतलब क्या होता है, अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो लोगों को उस पर ट्रस्ट होता है, लोग उस फॉर्म को ज़्यादा क्रेडिट वर्दीनेस देते हैं, उसे पहचानने रखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड. ओके, एज आई टोल्ड यू पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन और ओरल, पर रिटन इज प्रिफरेबल. ओके, रिटन ज़्यादा प्रिफरेबल होता है, लेकिन जो रिटर्न पार्टनरशिप होता है उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स भरनी होती हैं उनको, लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स. ओके, पर्पस ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस क्यों स्टार्ट हो रहा है, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, के फर्म की एस्टेब्लिशमेंट की डेट और ड्यूरेशन क्या है, डिटेल्स पार्टनर्स की अपनी डिटेल्स, उनका कैपिटल कितना है, उस पर कितना इंटरेस्ट देंगे. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई लोन कोई पार्टनर ले रहा है तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या रहेगा, वर्क
कौन सा पार्टनर एक्टिवली वर्क करेगा, किसको क्या वर्क दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर, कई बार क्या होता है कि अच्छी तरह वर्क कर रहा है तो उसे अलग से सैलरी या कमीशन दिया जाता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। ओके, अकाउंट एंड बुक कीपिंग, कैसे अकाउंट बुक्स लिखे जाएंगे, अकाउंट्स लिखे जाएंगे, उसकी भी डिटेल्स देनी होती है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर पावर फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसके नाम से होगा, किस पर्सन की उसमें साइन चलेगी, सारे पार्टनर्स की चलेगी या पर्टिकुलरली एक पर्सन की चलेगी, दैट इज ऑल्सो गिवन। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्म की जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है, जो गुडविल होती है, वो कैसे मेजर होगी। प्रोविजन ऑफ इंटरमीडिएटरी फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, एंड अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो कैसे सॉल्व होगा। ओके, साइनिंग अथॉरिटी, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी साइनिंग अथॉरिटी किसके पास रहेगी, एक पर्सन या सारे कर सकते हैं या कोई 2 पर्सन कर सकते हैं, डेट ऑल डिटेल्स इज टू बी गिवन। नेक्स्ट अगेन प्रोविजन फॉर एडमिशन, अगर बाद में कोई न्यू पार्टनर हम बीच में ले रहे हैं या कोई पार्टनर पर्टिकुलरली रिटायर हो रहा है, उसके भी डिटेल्स दिए जाते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ माइनर पार्टनर, अगर कोई माइनर पार्टनर एडमिट कर रहे हैं तो उसके क्या प्रोविजंस होंगे। प्रोविजंस फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट अ टाइम ऑफ अ डिसोल्यूशन, अगर फर्म डिसॉल्व यानी लास्ट में बंद हो रही, खत्म हो रही है, तो उस टाइम पे कैसे जो भी उनके असेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे या उनका प्रॉफिट जो भी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑल दिस डिटेल इज देयर इन to be given in this partnership deed. Okay, so it is advisable to have the written partnership deed. Now students, in this lesson we studied about mainly actually we studied about 3 forms of business: sole proprietorship, Hindu undivided, and partnership. But here we are going to see difference between sole proprietorship and partnership form. First is meaning. Okay, in sole proprietorship में क्या होता है, there is one person only who established the firm and manages everything, while in partnership there are 2 or more persons. Okay, number of partners in sole proprietorship only 1 partner, partnership firm minimum 2. Okay, minimum 2, and maximum as per Companies Act 2013 clause 6464, number of partners in partnership firm cannot be more than 100. Okay, and now as per government decision according to Companies Act in year 2014, okay, maximum partner should be 50 only. कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पर्सन लाता है, पार्टनरशिप में ऑल द पार्टनर्स हैव टू ब्रिंग द कैपिटल। एस्टेब्लिशमेंट, okay, any person can establish lawful business in sole proprietorship or partnership may be easy establishment, agreement is made, it can be written or oral. Decision, sole proprietorship में कौन decision लेता है, the owner, the person himself, और partnership में सारे partners मिलके decision लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है उसे ही बेयर करना होता है, और पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट या लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन, नो नीड टू रजिस्टर, और इन पार्टनरशिप इट इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज बेटर टू गेट इट रजिस्टर्ड। Secrecy can be maintained in sole proprietorship, but in partnership it becomes little bit difficult to maintain the secrecy. Transfer of share. Okay, in sole proprietorship question does not arise to any transfer of share. If he wants to transfer, he wants to decide sell his business, he can easily sell. While in partnership, if all the partners agree, then only a person can transfer his share. Risk, in sole proprietorship a single person has to bear all the risk, while in partnership risk is distributed among all the partners. So this was the difference of sole proprietorship and partnership, and with this we end the lesson. Your homework is whatever I explained you today, write it in your classwork and send to your concerned teacher. Thank you. Have a nice day.